حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے مصنف وہ فرماتے ہیں سنو بچے جب قرآن سیکھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں، جب یہ بچے قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ جب ان بچوں کا قرآن سنتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لو جو ظالم لوگ ہیں، عیاش ہیں، آوارہ ہیں اور گنہگار ہیں، جن کی رات کی تنہائیاں اڈوں پر گزرتی ہے، جن کے رات کی تنہائیاں فحش فلموں میں گزرتی ہے، جن کا دن جھوٹ بولے بغیر نہیں گزرتا ہے، عذاب آنے کے در پر ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ عذاب نہیں نازل کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے اللہ راضی ہو کر گنہگار جو اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، جو اللہ کا عذاب کو جھنجھوڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا الف با پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اللہ اکبر کی ندائیں لگانا، یہ اتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے۔ ورنہ تو پھر ہمارے قوم کی نوجوانوں کی نسل کی جو بے راہ روی ہے، ہمارے نوجوانوں کی جو عادتیں، جو خصلتیں، جو بری حالتیں ہیں، اس سے کوئی دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ پہنچتا۔ مسلمان نوجوان بچیوں کی حالت غیروں کا بستر بننا، نوجوان لڑکیوں کی حالت غیروں کے ساتھ پارکوں میں، کلبوں میں، ناجائز تعلقات میں، نامحرموں کے ساتھ زندگی گزارنا، اور مسلمان عورتوں کی حالت وہ مارواڑیوں کے پاس جا کر اپنے جسم کو سستا کر کے ان کے سامنے منہ کالا کر دینا، اور اسی طرح مسلمان نوجوانوں کی حالت چھوٹوں پر ظلم کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، یہ سب ایسے گھنونے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے گا، آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس لیے اپنے عذاب کو نازل کیے بغیر روکے رکھے ہیں کہ اس قوم میں اللہ اللہ کہنے والا چھوٹا بچہ مکتب میں پڑھنے والا موجود ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں جو مکتب کی اہمیت بتلاتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ جانیں گے رشتہ داروں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا بچہ کون سی اسکول پڑھ رہا ہے، کتنے کلاس پڑھ رہا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب بچے کسی رشتہ دار کے گھر کو جاتے تو وہاں پر پہلے یہ سوال ہوتا کہ تمہارا بچہ قرآن کتنا پڑھا ہے، تمہارا بچہ قرآن کتنے ختم کیا ہے، تمہارا بچہ کون سے مول صاحب کے پاس پڑھ رہا ہے۔ یہ بنیادی سوالات ان بچوں کے ماں باپ سے ہوا کرتے تھے، ایسا شوق، ایسے جذبے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج قوم صرف پوچھے گی تو کون سی اسکول پڑھ رہا ہے، کون سی کلاس پڑھ رہا ہے، صرف یہی سوالات بچوں سے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچوں سے قرآن آپ کتنا پڑھے ہیں، قرآن کا ترجمہ آپ کتنا سیکھا ہے، قرآن کے سورے آپ کتنے یاد کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کتنے جنگیں ہوئے ہیں، کتنے انقلابات آئے ہیں، فتح مکہ کب ہوا ہے۔ یہ سیرت طیبہ کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اپنے بچوں کو سوالات کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یا پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں میں آپ کے پاس حدیث کا علم جاننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ پہلے قرآن پڑھواتے، بعد میں حدیث کا علم سکھاتے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے فقیہ ہیں، ان کے پاس جب بچہ جاتا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جاتے اور جا کر کہتے میں فقہ کا علم جاننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کیا تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو تم جاؤ پہلے قرآن پڑھ کے آؤ، بعد میں تمہارا داخلہ ہمارے علم حدیث سکھانے کے لیے ہوگا۔ اس طرح وہاں پر مدرسوں میں بھی شرط یہ تھی کہ تمہارا بچہ پہلے قرآن سیکھے،
بعد میں حدیث کی کتابیں، بعد میں فقہ کی کتابیں. لیکن افسوس کی بات، یہاں بچہ بولنے جب لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی گھر میں مشورے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کون سی اسکول میں ڈالنا چاہیے، کون سی ٹیوشن میں پڑھانا چاہیے. بلکہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو پہلے اسے کلمہ پڑھائیں، کلمہ سکھائیں، اس کو قرآن پڑھائیں، پہلے اسے اللہ اور رسول کی باتیں سکھلائیں. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے دور میں صحابہ کو اس طرح مکتب پڑھاتے اور تعلیم دیتے تھے جیسے آج کل کے اساتذہ اپنے شاگردوں کو سبق سکھاتے ہیں. اتحیات کے میں بیٹھ کر سامنے بھی طالب علم کو بٹھا کر ان کے گھٹنے، پڑھنے والے کے گھٹنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے آپس میں ملتے تھے. اتنے قریب بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سورہ فاتحہ سکھاتے، اتحیات سکھاتے. اس طرح ماحول تھا، اس طرح تعلیم اس دور میں دی جاتی تھی. اور اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ جب کہیں بھی جاتے تو بچے سے پہلے یہ پوچھتے کہ آپ کو کتنے سورے یاد ہوتے ہیں، کتنے سورے یاد ہے، فلاں فلاں سورے تم سناؤ، میں تم کو 10 روپے انعام دوں گا، 100 روپے انعام دوں گا. ایسے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، جب کہیں بھی جاتے تو بچوں سے قرآن سے متعلق، سوروں سے متعلق، عقائد سے متعلق یہ بنیادی سوالات کر کے ان بچوں کو 10 روپے 20 روپے یہ انعامات دیا کرتے تھے. لیکن آج کل کے بڑے لوگوں کی حالت ہے، ایک 10 روپے جوب سے نہیں نکلتے، لیکن چھوٹا بچہ ہاتھ میں نورانی قاعدہ پکڑ کر آتا ہے تو اسے بھی ڈانٹتے ہیں، اسے بھی گالیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ مسجد تک نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر وہاں جاؤں گا تو وہ ماموں مجھے ماریں گے، وہ ماموں مجھے گالیاں دیں گے. اس طرح بچے مکتب سے، مسجد سے دور ہو رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، جیسے بڑے لوگ اس دور کے گزرے ہیں، بچوں کو بٹھا کر بلا کر آپ سورہ فاتحہ سناؤ، میں آپ کو خوش کروں گا، یعنی پیسے دیتے تھے، چاکلیٹ لا کر دیتے تھے، بچوں سے دل مل کر ان کو ملا لیتے تھے، بٹھاتے تھے اور ان سے قرآن کی خدمت لیا کرتے تھے. اس طرح کا مزاج پہلے لوگوں میں تھا جو اس وقت ضروری ہے. اس طرح کرنے سے بچے قوم کے کٹوں پر نہیں رہیں گے، مسجد کو آئیں گے. بچے قوم کے مڑیوں میں کرکٹ کھیلتے نہیں رہیں گے، مسجد اور مکتب کو آ کر قرآن و حدیث سیکھیں گے. ذرا توجہ کیجئے، 12 سال 14 سال اس بچی کو اسکول پڑھائے ہیں، بچی کی عمر 24-25 سال ہو رہے ہیں، اور وہ بچی کی ماں اس کو افسوس کر کے میری زندگی میں میری بچی کو قرآن نہیں پڑھا سکی، اس لیے قرآن نہیں پڑھوا رہی ہے. بلکہ میری بچی اگر قرآن نہیں پڑھیں گی تو جائے گی جہاں پر اس کی ناک کٹ جائے گی. یا پھر ایسے خواتین بھی ہیں، اگر وہ قرآن پڑھ لے گی، دیندار کہلائے گی، اسے اچھے رشتے لگیں گے. ان وجوہات کی وجہ سے بچیوں کو قرآن پڑھتے ہیں. یاد رکھ لینا چاہیے، جن بچیوں کی تربیت بچپن میں نہیں ہوگی، جن بچیوں کو سورہ نور کا ترجمہ نہیں سکھلایا، نہیں پڑھایا جائے گا، جن بچیوں کو صحابیات کے واقعات نہیں سنایا جائے گا، یہ بچیاں باس کو خوش کریں گی. یہ بچیاں حافظ تو چلائیں گی لیکن گھر نہیں چلا سکے گی. یہ بچیاں باس کو خوش کریں گی لیکن اپنے شوہر کو خوش نہیں کر پائے گی. کیا وجہ ہے؟ کہ ان بچیوں کی تربیت جیسی ہونی چاہیے وہ بچیوں کی تربیت اپنے ماں نے اس طرح انہیں نہیں کی ہے. آگے ہم واقعات آپ کو سنائیں گے کیسے کیسے وہ اللہ کے نیک بندے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں بھی اگر کوئی باپ اپنے بچے کے سلسلے میں دیکھ لے کہ میرا بچہ آوارہ بن گیا، میرا بچہ اسلام چھوڑ کر غیروں کا مذہب قبول کر لیا، تو خواب میں ہی وہ ڈھل مار کر اٹھ جانا چاہیے اور جا کر اپنے بچے کو کلمہ پڑھا کر اور اس کی تربیت کرنے کی کوشش اور سلسلے شروع کر دینا چاہیے. وہ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں بھی اگر کوئی باپ اپنے بچے کے سلسلے میں بگڑتا ہوا دیکھ لے تو اس کو فوراً اپنے بچے کی تربیت کرنی شروع کر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے، خواب تو خواب ہے، ماں باپ بچے کو
बेदारी के हालत में देख रहे हैं। बच्चा एक हाथ में सिगरेट लेकर फिर रहा है, बच्चा वहां आवारा बनकर चोरियां कर रहा है, बच्चा स्मगलिंग कर रहा है, बच्चा हत्या के रिपोर्ट में आ रहा है, वो नशा इस्तेमाल कर रहा है, तरह तरह के इंजेक्शनें ले रहा है, फिर भी इन माओं को, इन बापों को तरबियत करने की कोई फिक्र नहीं हो रही है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया हो, असल यतीम तो वो है जिसका बाप जिंदा है लेकिन उसके बाप ने उस बच्चे की तरबियत ना की है। बाप का इंतकाल हो जाने से बच्चा असल यतीम नहीं बनता, लेकिन बाप जिंदा रहकर भी अगर वो बाप अपने बच्चे की तरबियत नहीं किया है तो ये भी यतीम बच्चा कहलाएगा। उसका बाप जीते जी इन बच्चे के हक में मरा हुआ है। क्यों? इस वजह से कि बच्चे अपने बाप के रहते हुए भी तरबियत नहीं पाया है। इसी तरह हजरत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वाक़या लिखा है किताबों में, बाप जब बच्चा बिगड़ गया पकड़कर मारने लगा बाप बच्चे को, तो बच्चा कहता है अब्बा बचपन में तुमने मेरी तरबियत नहीं की थी, बचपन में तुमने मुझे जमात में या फिर मदरसे में नहीं भेजा था, अब मैं आवारा दोस्तों में मिलकर अब मैं खराब हो गया हूं, अब मेरा जुर्म नहीं है तुम्हारा जुर्म है। जब बचपन में मुझे तरबियत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी तो उस दौर में तुमने तरबियत नहीं किए हैं, अब मैं जब बिगड़ गया हूं तो अब मेरी तरबियत नहीं कर रहे हैं बल्कि तुम मुझे मार रहे हैं। ये बच्चों की ललकार है, जो बच्चों के सवालात है जो अपने माओं से बापों से कह रहे हैं। तो इस वजह से बचपन में ही माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत की जाए, और इसी तरह ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बचपन में बच्चों को मकातिब में जरूर दाखिला करवाएं, और ये छुट्टियां जो आ रही हैं इसमें अपने बच्चों को समर कोर्स में दाखिला करवाकर उसको ईमान क्या है, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और एथेइज्म और मेटेरियलिज्म, ये नए नए जो मादा परस्ती, जो इल्हाद, जो प्रोपेगेंडा बातिल के तरफ से आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, इसी तरह मुसलमान बच्चों का ईमान सब करने के नाम पर, अगर ऐसे मौके पर अगर हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत नहीं करेंगे तो बहुत अफसोस करना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसीलिए अब जो माओं ने तरबियत किए हैं इनके बारे में चंद वाकयात में आप हजरात को समझाता हूं। एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है, बाप अपने बच्चे को हाथ पकड़कर नमाज को ले आता है 5 वक्त की नमाज में। जब बच्चा नमाज पढ़ लेकर बाप के साथ मस्जिद से उतरकर सीढ़ियों पर पहुंचता है, बाप खड़ा कर बच्चे को पूछता है, बेटा तुमने मेरे साथ नमाज तो पढ़ी है लेकिन क्या तुम दुआ भी करे? तो बच्चा कहता है हाँ अब्बू मैंने दुआ कर लिया हूं। तो बच्चे से बाप दूसरा सवाल ये करता है, बेटा क्या तुमने फितनों से बचने की दुआ की है? तो बच्चे ने कहता है नहीं अब्बू मैंने ऐसी कोई दुआ नहीं की। तो बाप ने बच्चे का हाथ पकड़कर फिर मस्जिद में ले आता है और बच्चे को बिठाकर दुआ करवाने लगाता है, बेटा इस तरह दुआ कीजिए, फितनों से बचने के लिए दुआ कीजिए, हालात बदलने के लिए दुआ कीजिए। इस तरह उन माओं ने, उन बापों ने अपने बच्चों की तरबियत की थी। और इसी तरह ये वाकया तो बहुत मशहूर है, कैसे माओं ने अपने बच्चों की तरबियत की थी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता इस अल्लाह के बहुत बड़े वली को। फरिश्तों में हजरत जिब्राइल का मकाम जिस तरह है, इसी तरह पूरे औलिया में हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम है। जब उनकी माँ ने, बाप का इंतकाल हो गया, बेवा माँ है, अपने बच्चे की तरबियत की फिक्र जब माँ को हुई तो वो माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के खातिर, तरबियत दिलवाने के खातिर अपने एक दूर दराज के मौल साहब के पास ले जाती है और मौल साहब से कहती है ये मेरा बच्चा है जिसे मैं आपके हवाले कर रही हूँ, और सुनो जब तक ये बच्चा मुकम्मल पढ़ नहीं लेगा, हाफिज आलिम नहीं बन जाएगा, कौम का रहनुमा रहबर नहीं बन जाएगा, जब तक इस बच्चे को छुट्टी नहीं देना है, इसको घर नहीं भेजना है,
इस तरह कहकर उस्ताद से वो माँ ने बच्चे को ले जाकर छोड़ती है। और बच्चा तो छोटा बच्चा है, कभी माँ की जुदाई को बर्दाश्त नहीं किया। पहली मर्तबा माँ ने जतन करते हुए, हिम्मत करते हुए उस बच्चे को ले जाकर दूर दराज मदरसे में ले जाकर छोड़ा है। तो सुनो, वो बच्चा चंद दिन गुजरते हैं तो उस्ताद से कहता है, अब हजरत मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी माँ मुझे याद आ रही है। तो उस्ताद को माँ का वो वादा याद आ गया कि माँ ने कहा था कि हजरत अपने बच्चे को मुकम्मल पढ़ लेने से पहले नहीं भेजना। तो उस्ताद ने बच्चे से कहा, हम आपको अभी नहीं भेजेंगे, आप 4-5 दिन का सबक एक ही दिन में अगर सुना दिए तो तब आपको छुट्टी मिलेगी, आपको भेजा जाएगा। तो वो बच्चा पूरी रात बैठकर मेहनत करके 4-5 दिन का सबक याद करके उस्ताद को सुना देता है, ताकि मुझे अपने अम्मी से मिलने का मौका मिल जाएगा, मैं छुट्टी लेकर जाकर अम्मी से मिलकर आऊंगा। इस नियत से पूरी रात बैठकर बच्चा हिफ्ज करके, याद करके, मेहनत करके 4-5 दिन का सबक याद करके सुबह हजरत को सुना देता है। तो हजरत अब मजबूर हो जाते हैं, जो बच्चे से वादा किए थे कि 4-5 दिन का सबक सुनाते तो हम छुट्टी देते हैं, अब छुट्टी देना ही पड़ गया। तो हजरत जब बच्चे को छुट्टी देते हैं तो वो बच्चा घर जाता है। घर का दरवाजा जब किटकिटाता है तो अंदर से आवाज आती है, कौन है? तो बच्चा कहता है, बायजीद हूं। तो अंदर से माँ को मालूम है कि मेरा बेटा आया है, लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं मेरे बेटे को मैं छोड़कर आई हूं, इतना जल्दी मेरा बेटा हाफिज आलिम तो नहीं बन जाएगा। तो माँ अंदर से कहती है, कौन बायजीद है? मैं किसी बायजीद को नहीं पहचानती हूँ। इस तरह वो माँ कहती है। तो वो बच्चा कई रात मेहनत करके, सबक याद करके, सुना के, कई सफर को बर्दाश्त करके, मेहनत करके घर को आता है। तो अंदर से जब माँ की ये बात आती है तो वो बच्चा घर से फौरन मदरसा जाता है। उस बच्चे को मालूम हो जाता है कि मेरी माँ ये चाहती है कि मेरी पूरी पढ़ाई मुकम्मल हो। तो बच्चा जाकर पढ़ता है। कई साल गुजर जाते हैं, हत्ता के 17-18 साल तक वो बच्चा पढ़ता है। हजरत के ख्वाब में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उस बच्चे से मुतालिक बशारत देते हैं, अब ये बच्चा खिलाफत का मुस्तहिक हो गया है, इस बच्चे की तरबियत हो गई है, अब इस बच्चे को छुट्टी करवा दें, उसकी अम्मा से मिलने के लिए भेज दें। तो जब ये बच्चा 18 साल के बाद माँ के घर को जाता है, पहले ही खटका जब मारता है तो बायजीद हूं जब कहता है तो फौरन माँ कहती है, बेटा मैं तेरा इंतजार 18 बरस से कर रही थी। 18 बरस तक अपने बच्चे की तरबियत के खातिर उन माओं ने कुर्बानी दी है, तो कौम को, उम्मत को बायजीद जैसे वली मिले हैं। तो माओं को, बापों को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए ये कुर्बानी दे, पढ़ाई के खातिर, तरबियत के खातिर। और इसी तरह हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयदना पीराने पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कौन नहीं जानता, वो अल्लाह के नेक वली। बचपन में माओं ने जतन करके, हिम्मत करके छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए दूर दराज भेज दिए। फूफी ने या खाला ने पूरा अपना जेवर लाकर, माँ ने अपने जो पैसे जमा किए थे 40 अशरफियां, ये सब बच्चे को उठाकर देकर कहते हैं, बेटा तू फलाने मुल्क जाकर तालीम हासिल कर लेके आ। इस तरह इन माओं की कुर्बानी हुई तो इस जमाने को, इस कौम को अल्लाह के नेक वली पीराने पीर मिले हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने बच्चों को दीन की तरफ दिलवाएं। और इसी तरह निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह, दिल्ली को अगर कोई गए हैं तो निजामुद्दीन मरकज के बाजू निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह की मजार भी मौजूद है। बहुत बड़े नेक अल्लाह के वली हैं। इनके बारे में लिखा है कि ये बचपन में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो इनकी माँ ने ऐसी तरबियत इनको की कि बेवा की हालत में अपने बच्चे को दिल्ली के अल्लाह के नेक वलियों के पास ले जाती और उन वलियों के सामने बिठाकर अपने बच्चे को कुरान और तरबियत की बातें सिखवाती। वो माए बेवा होने की हालत में, वो बच्चे यतीम होने की हालत में तरबियत पाए हैं, लेकिन आज के बच्चे बाप के होते हुए भी आवारा बन रहे हैं, माँ के होते हुए भी बेवराह रवी इख्तियार कर रहे हैं। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है इन छुट्टियों में इन बच्चों को जाये किए बगैर अपने बच्चों को समर कोर्सेस में दाखिल करवाएं, ईमान सिखलाएं, अकायद सिखलाएं, सीरत सिखलाएं और अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करवाएं।
11 महीने स्कूल पढ़वाए हैं, 1 महीना छुट्टी का आया है। इस महीने का शेड्यूल बनाकर, निजामुल अमल बनाकर अपने बच्चों के छुट्टियों को कीमती बनाने की कोशिश करें। तो बुजुर्गों, आखिरी बात जो इस मौके पर अर्ज करनी है वो यही है कि ये जो छुट्टियां आ रहे हैं, समर ओकेशन, समर हॉलीडेज, ये जो मई का महीना शुरू होते ही सारे बच्चों को छुट्टियां मिल जाते हैं, तो सबसे पहला काम जो करने का है, तो पहला काम ये है मुनासिब अमीर के निगरानी में इन बच्चों को जमात में भेजें। दूसरा काम जो करने का है वो ये है अपने महल्ले की मस्जिद में समर कोर्स कायम करें, या फिर जहां समर कोर्स चल रहा हो वहां समर कोर्स में अपने बच्चों को जरूर दाखिला दिलवाएं, ताकि हमारा बच्चा कुरान, हदीस, अकायद, सीरत और ये सब हमारा बच्चा वहां सीखे। और तीसरा काम जो इस समर हॉलीडेज में करने का है वो है अपने बच्चों को सिला रहमी सिखाएं। सिला रहमी, गुस्से को कैसा काबू पाना है, घर का निजाम कैसे चलाना है। बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल में था, शाम में आया, फोन देखा, सो गया, बाप के साथ कभी बैठने का मौका नहीं मिला, माँ की बात कभी सुनने का मौका नहीं मिला, माँ बहन बेटे बैठकर कभी एक वक्त नहीं रहे, स्कूल में खाना खाए, दोपहर का नाश्ता भी तोशा बन के लेके गए, एक वक्त बैठने का मौका नहीं हुआ। तो इन छुट्टियों में बच्चों को घर में बिठाकर एक शेड्यूल बनाकर, बेटा कब हम सबको उठना है, हम सब बैठकर घर की तालीम करना है, हम सब सीरत की एक मुख्तसर किताब पढ़ना है, 40 दिन में मुख्तसर सूरे हम तफसीर के साथ पढ़ेंगे, ये निजाम बनाना है। और बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को एक गिफ्ट के तौर पर ये तय कर ले, अगर बेटा ये 40 दिन की छुट्टियों में अगर तुम घर में बैठकर ये किताब मुकम्मल कर लेंगे तो हम 40 दिन के बाद आपको इनाम देंगे। ये कुछ करने के काम है जो जिम्मेदारी के हैं। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे बच्चे गाड़ियां चलाते हुए एक्सीडेंटों में नहीं मरेंगे, अखबार में न्यूज़ेस नहीं आ रहेंगे। ऐसा अगर हम करेंगे जैसा बताया जा रहा है, हमारे बच्चे स्विमिंग पूल में जाकर और इसी तरह डेमो में जाकर हमारे अखबारों में नहीं आएंगे, फलानी फैमिली या फलाना बच्चा वहां तीरने के लिए जाकर वहां गिरकर अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो गया है, ऐसे न्यूज़ से सुनने का हमको मौका नहीं मिलेगा। अगर जो करने के काम हमको बताया जा रहा है वो अगर करेंगे, इसी तरह इन मौकों पर अपने बच्चों को छोड़ेंगे तो ये बच्चे फोनों की लत में मुब्तला हो चुके हैं। शराब की लत से ज्यादा बच्चों को फोन की लत लग चुकी है। बच्चा भी फोन में, बड़ा भी फोन में, माँ भी फोन में, बच्ची भी फोन में, जिसकी वजह से अखलाक बिगड़ गए। बड़ों को जवाब देना फैशन बन गया, नमाज को छोड़ देना स्पेशल वो एक फैशन बन गया। क्या वजह है? फ्री फायर, पबजी, इन्हीं गेमों में ये बच्चे अपनी छुट्टियों को जाये और बर्बाद कर रहे हैं। और हत्ता के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से नाजायज ताल्लुकात, हराम जिंदगी, जब इनमें मुब्तला हो जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे अच्छे पोस्टों में नहीं आएंगे। फिर कोई आईपीएस नहीं बनेगा, ना कोई जज बनेगा, फिर हम भीख मांगते हुए फिर वही लोगों के पास जाकर अपने मसाइल को हल करवाना पड़ेगा। तो ये चंद काम है जो इस मौके पर, इन छुट्टियों पर जो हमको करने के हैं। और आखिरी बात जो है जो इस मौके पर अर्ज करनी है वो ये है, आप लोग जानते हैं कश्मीर पहलगाम में आतंकवादियों ने, टेररिस्टों ने निहत्ते इंसानों को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, लेकिन इंसानियत को वो ज़बाह किए हैं। उन दरिंदों ने कत्ले आम किया है। इन दरिंदों से कोई मजहब का ताल्लुक नहीं होता है, ये तो दहशतगर्द कहलाए जाते हैं। हम इनकी निंदा करते हैं और ये हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब ये आज अहद करते हैं, कोई भी दहशतगर्द हमारा कोई मजहबी भाई नहीं होता है। इनका ना कोई मजहब से ना धर्म से कोई इनका ताल्लुक नहीं होता है। सबसे पहले हम कंडेम करते हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा, इस जुर्म से, इस जो हादिसे से कौम में और हिंदुस्तान में जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है
उन लोगों की तरफ से वो ये है मुसलमानों और गैरों में नफरत की बात। कई न्यूज़ेस आप देखे होंगे कि वो लोग कह रहे हैं इनके धर्म में ही ये है कि मुसलमान पूरे गैरों को मार दिया जाए। हरगिज ऐसा इस्लाम धर्म में नहीं है। ये मैसेज सारे हिंदू भाइयों तक पहुंचना चाहिए कि कहीं इस्लाम में दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं किया गया है। इस्लाम तलवार से नहीं पहला है, इस्लाम तो मोहब्बतों से पहला है। इस्लाम तो मोहब्बतों से, खिदमतों से और सोशल काम से पहला और पहुंचा है। ये इस्लाम कोई दहशतगर्दी से नहीं पहला है, नहीं पहुंचा है। ये मैसेज पूरे मुसलमानों को देना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।